using the deck of cards, we can classify the element. This was the inspiration. Now the next thing is, see, अब classification किस base पे? If you will see towards the cards, you know, cards में क्या होता है? King, right? King होता है, queen होता है. So different characters are there in the cards, right? And then you make them classify. अब यहाँ पर what he thought that let us we start the classification based on their atomic mass, because याद रखिएगा उस समय atomic mass एक prominent characteristic थी with respect to atomic number. Atomic mass का existence ज्यादा था. So his first way of thinking was, let us start to make the segregation of element based on atomic mass. और उन्होंने सारे एलिमेंट को उठाया और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास में पुट करते चले गए एलिमेंट को. अब देखिए क्या हुआ. what he noticed that a pattern is going to be emerged, right? pattern मतलब समझते हैं, मतलब क्या है कि सपोज आपने क्या किया, पहले एटॉमिक मास 1 रखा, 2 3 4 5 6 7 8, right? Then you just keep it 9 10 11 12. What he noticed that atomic mass 2 and 9 are having same property. So what he told, he again started the 9 and put it just beneath to 2, right? अब देखिए इसी को समझिएगा कैसे उन्होंने, it's a beautiful mindset actually. You see, पहले याद आ गया आपको, उन्होंने क्या किया, प्लेइंग कार्ड से समझा कि अगर हम सेग्रीगेशंस लोअर टू हायर में करें तो देखते हैं क्या होता है, राइट? फिर उन्होंने क्या किया, he has lined up all the element in the order of increasing mass and atomic mass, and then he noticed a pattern is present on putting the element in the increasing order of atomic mass. अब वो पैटर्न क्या था ये याद रखिएगा. देखिए उन्होंने क्या किया, अभी जैसे आप कार्ड्स में क्या करते हैं, आप 1 से शुरू करिए टिल किंग तक रखते चले जाइए. Similarly he has also started. तो देखिए उन्होंने क्या लिखा, Mendeleev arranged the element into the rows, क्योंकि उन्हें वही से आइडिया आया था, right? When he has started with the rows in order of increasing mass, the elements with a similar property were in the same column. देखिए कंफ्यूजन है, लोग उल्टा समझते हैं, बट मेंडलीफ ने जब शुरू किया तो देखिए क्या था, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर को रो में रखा था, राइट? और व्हाट ही नोटिस दैट इन कॉलम देयर आर द सिमिलर प्रॉपर्टीज. अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, यहां पर याद रखिएगा, ही नोटिस जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज नोटिस की थी वो याद रखिएगा वैलेंस नंबर की थी. वैलेंस नंबर मतलब देखिए उस समय I'm not pretty sure whether the discovery of electron has happened or not, but as per my knowledge, it was not been discovered till the Mendeleev periodic table, right? So what has happened? The valence number मतलब होता था the bonding capacity of any element. In what capacity is going to be combined? Based on that, chemical property used to be explained, right? मैं आपको ये बताऊंगा कि in what way they used to classify based on the chemical property. उस समय तो कुछ था भी नहीं. It was a history of 200 years back. Just imagine these many things will not be available. Then in what way they used to classify, and what do they, if they mention chemical property, what their mean is? I will tell you. Now see, मैंने लिखा भी है वैलेंस नंबर मीन्स, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का वर्ड मैंने आपको समझाने के लिए किया है, but I don't think that the word electron has come into the picture at that time. I'm not pretty sure, but I think electron की discovery 1885 के बाद हुई है, and Mendeleev has given this periodic table 20 years before than that, but still. Okay, अब देखिए, observing the valence electron, just make you understand. Lithium का 1, beryllium 2, boron 3, carbon, nitrogen, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ही होता है. अब इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि अगर आप एटॉमिक मास को ग्रुप के ऑर्डर में जाते जा रहे हैं तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक के नीचे एक आते जा रहे हैं, इसके नीचे जब टर्न अप होंगे. तो ही saw this pattern over and over again, and that is a pattern of a period, right? अब देखिए, when the elements were arranged in this way, they fell into the column one and to another, and that was the chart and called as periodic table. So this way the Mendeleev has given his theory. Now a periodic table is arranged, ये आपको पता है, of element in a column based on the set of property that will repeat from row to row. बराबर है ना, इसमें तो कुछ बोलने वाली बात नहीं है. अब देखिए, अब आपको एक ब्यूटी समझाता हूं कि मेंडलीफ इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुए कि
आज भी मॉडर्न पीरियडिक लॉ आने के बावजूद उसे एक्सटेंडेड फॉर्म का नाम दिया गया, बट आपको ये नहीं पता होगा कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दी, क्योंकि मेंडलीफ ने सब चीजों को ओवरशैडो किया। तो ओवरशैडो का रीजन समझिएगा। देखिए, लोथर मेयर का मैंने जो आपको पढ़ाया या जो आप पढ़ेंगे उसमें ऐसा था कि लोथर मेयर वाज प्राइमरली फोकस्ड टू क्लासिफाई द एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, यही मैंने आपको बताया है, राइट? But here, if you will see, Mendeleev was the first person who has a will to classify the element not only on the basis of physical but also the chemical property. Okay? अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। आपको याद होगा Mendeleev has given some blank spaces in the periodic table, आपको पता है, right? और उन्होंने ये बोला कि these element which has been kept blank will be discovered in the future, and if they do have these properties they will be put it in this position. ये मेंडलीफ ने उस समय एक विजनरी थॉट समझिएगा कि जो चीज डिस्कवर्ड नहीं हुई है उसकी भी प्रॉपर्टी मेंडलीफ ने बताई थी, एंड ही टोल्ड दैट इफ एनी एलिमेंट विल हैव दीज मेनी कैरेक्टरिस्टिक यू कैन कीप दोज एलिमेंट इनटू दिस प्लेस. दैट्स अ ब्यूटीफुल विजन व्हिच हैज बीन केप्ट बाय मेंडलीफ. अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, 32, right? Element atomic number 32, right? He predicted the characteristic of those element at that time, right? अब देखिए क्या क्या प्रेडिक्शन किया था मेंडलीफ ने, वो समझिएगा. मेंडलीफ का प्रेडिक्शन क्या था कि इस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा 72. इट इज अ प्रेडिक्शन, जस्ट इमेजिन. डेंसिटी होगी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड द वैलेंस नंबर विल बी 4, एंड द कलर विल बी dark gray. So these four characteristics has been proposed by Mendeleev when the element was not discovered. Remember this, not discovered, and still he is proposing the quality or the characteristic of the element. Acha. Now compare when this element has been discovered. Now see, after the discovery, what the observations has come across. Atomic mass 72.6, density 5.32, valence number 4, and the color is gray or slash white. It all depends upon the nature of ore also, right? अब देखिए मेंडलीफ को पता नहीं था कि 32 एटॉमिक नंबर क्या होगा, फिर भी उसके कैरेक्टरिस्टिक बताया कि these many characteristics are possible in this element which may be discovered in the coming future. और उसका नाम बाद में जर्मेनियम देखें. अब जरा कंपेयर करके देखें, एटॉमिक मास 72 and his observation and the atomic mass of the element is 72.6. Only a variation of 0.6. Density 5.5 और यहाँ पर कितना है 5.32. Means you can say it's a very close by. Valence number is the same, and even color. Means color also was proposed by Mendeleev, and it was matched with the germanium, right? अब देखिए, this is the beauty which made Mendeleev a genius, or made him so much popular in the field of periodic table. ये याद रखिएगा, ठीक है? जस्ट सोचिए कि जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में एक प्रेडिक्शन देना, और ये प्रेडिक्शन उसने कैसे दिया था? पीरियडिक टेबल में 32 एटॉमिक नंबर जहां पर आ रहा था उसके रिमेनिंग एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, ये मैं और आपको बता देता हूं. एंड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी ही टोल्ड दैट इन द फ्यूचर इफ इट इज गोइंग टू बी डिस्कवर्ड दैट एलिमेंट शुड हैव these मेनी प्रॉपर्टीज, राइट? एंड इट रियली मेक हिम पॉपुलर. अब देखिए पैटर्न इमर्जेस. अब आगे चलते हैं. अब देखिए इसमें क्या किया. द टेबल दैट वाज प्रोड्यूस्ड शोज द एलिमेंट इन द हॉरिजॉन्टल रो at the period with increasing atomic mass, and the vertical columns were the members of the group with a similar chemical property. मतलब क्या है, आप लेफ्ट टू राइट देते जाते हैं तो आपको पता है उसको पीरियड बुलाया जाता है, और जब आप टॉप टू बॉटम पीरियडिक टेबल में मूव करते हैं तो उसे ग्रुप कहा जाता है. एंड द एलिमेंट व्हिच आर ऑक्यूपाइंग इन द ग्रुप they do have the similar chemical property. और chemical property का मतलब आपको याद होगा उस समय क्या बोला जाता था? उस समय बोला जाता था उनका, मैंने अभी बोला था वैलेंस पैटर्न, राइट? और वैलेंस पैटर्न मतलब मैंने आपको क्या बताया, बॉन्डिंग कैपेबिलिटी. इलेक्ट्रॉन तो था नहीं सब शायद, तो बॉन्डिंग कैपेबिलिटी से एक्सप्लेन था. यानी ग्रुप में जो भी आ रहे हैं उनके बॉन्डिंग कैपेबिलिटी विल बी सेम एनफ, राइट? बट इफ यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या है कि हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें रखते जा रहे हैं. अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज वेयर अकरिंग इन द पीरियडिक फैशंस. दैट इज अनदर ब्यूटीफुल थिंग. इसका मतलब क्या होता था? देखिए उस समय की अगर बात की जाए तो जस्ट इमेजिन
कि क्या अवेलेबल रहा होगा। ये बात है 1865 की, नाउ वी आर लिविंग इन 2020, मींस यू कैन से इट इज 250 years ago, राइट। So chemical property में ऐसा तो है नहीं कि they are going to explore with the every substance which was been available at the time, because at the time the lab setup is also a difficult task. So the first approach to explain the chemical property of any element used to be based on the reactivity towards oxygen and water. Make it a note. और इसीलिए मैं आपको बता दूं एल्कली मेटल की डिस्कवरी बहुत जल्दी हुई। फास्फोरस सबसे पहले हुआ, उसके बाद एल्कली मेटल आया, क्योंकि एल्कली मेटल का क्या था, वंस दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड विद द वाटर इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक, आप जानते हैं सोडियम के केस में, इसीलिए एल्कली मेटल को एक्सट्रैक्टेड आउट करना आसान था। और मैंने आपको उस समय भी बोला था डेबोनियर का पहला ट्रायड एल्कली मेटल पे ही था, यानी इट इज अ मैटर ऑफ 1805 और 1819, राइट। तो अब देखिए, तो ये दो और भी थी, बट जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करती थी वो दो थी, आइदर द एलिमेंट हैज टू बी रिएक्ट विद वाटर और द ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल थे, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, once on the treatment with the oxygen, what they used to produce a white powder, and they have noticed that this white powder react with the water in a slowly fashion, and that is the chemical property, and all these elements are showing the same chemical property, and I'm putting them in the increasing order of atomic mass, they come in the same group. So he concluded that these elements, I mean alkaline earth metal, have the chemical property, similar chemical property towards the oxygen. देखिए कैसी अप्रोच डेवलप हो रही थी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो लोथरमैन ने काफी कुछ कर दिया था देखा जाए तो, but chemical property was literally not known in such a way where the classification can come. No, it is like मैंने किया और मैंने उस चीज को प्रूव कर दिया, राइट। तो फिजिक्स, अब देखिए ये पीरियडिक टेबल थी 1869 और 1871 की, राइट। अब देखिए यहां पर मैंने जो चेक यूज किया है, ये देखिए ये वाला, राइट। ये क्या बुलाता है, ये बुलाता है कि ये डेबोनियर ट्रायड्स हैं, मतलब डेबोनियर के टाइम पे ये सब एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, एंड ही हैज क्लासिफाइज दोज एलिमेंट इन द पर्टिकुलर ग्रुप। आपको पता है डेबोनियर ने क्या किया था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को क्लब किया और मिडिल वाले का एटॉमिक मास पहले और थर्ड के एलिमेंट के एवरेज सम के बराबर था। फिर क्या हुआ, ये कलर आया और इसको इन्होंने क्या बोला, इट इज नोन टू मेंडलीफ। और ब्लू कलर जो इस पीरियडिक टेबल में मेंशन है, याद रखिएगा, इट इज अननोन टू मेंडलीफ, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला जो है, जो हम ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ये दैट डू बिलोंग्स टू इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस अगर आप देखेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव तक इनर्ट गैसेस आप पिक्चर में नहीं थे, राइट। और बहुत कुछ फेल्योर का रीजन इनर्ट गैसेस बना इन दो थ्योरीज के लिए। पहली वाली थ्योरी तो इट वाज वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, बट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और उसके बाद ग्रेजुअली आई थिंक लोथरमेयर के टाइम पे नोबल गैस का कॉन्सेप्ट आ चुका था, लेकिन इससे पहले नहीं था। सो द मेजर सेटबैक ऑफ two theories was the position of noble gases। क्या छोड़िए, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन को रखा, फिर अब ये देखिए क्रॉस चेक, ये चेक फॉर्म में है ना, ये तीन, ये डोबेनियर के टाइम पे ही क्लासिफाई किए जा चुके थे। और उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, कॉपर, राइट। अब देखिए यहाँ पर तक गए, निकल के बाद यहाँ से कॉपर के लिए रिटर्न आया, फिर जिंक आया, लाइक दिस वे ही हैज पुट इट। अब यहाँ पे ब्लू वाला जरा ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ब्लू कलर, मतलब ये देखिए इनर्ट गैसेस भी अननोन ही थी, ब्लू कलर में है ना, ब्लू बॉक्स में। तो इनर्ट गैसेस की पोजीशंस को भी उन्होंने ब्लैंक रख के छोड़ दिया था और उन्हें साइड में पोजीशंस दी थी मेंडलीफ में, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे स्कैंडिनेवियम एटॉमिक मास कितना है 45, अब टिटेनियम का कितना है 48। अब देखिए, और यहाँ पर कैल्शियम का कितना है 40, मैं 40 ले रहा हूँ राउंड फिगर। अब देखिए यहाँ पर जो चीजें अननोन थी मेंडलीफ को, उससे यहाँ पर उन्होंने एक स्पेस दे रखा था पीरियडिक टेबल में, ये याद रखिएगा। यानी Scandinavium was not been discovered till date when the Mendeleev has given the chart, and he has kept the space blank.
अब देखिए क्यों ब्लैंक दिया था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी समझ लीजिएगा, स्कैंडिनेवियम वाज नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल द डेट व्हेन द चार्ट हैज बीन गिवन बाय पीरियोडिक टेबल बाय मेंडलीफ, सो ही केप्ट दिस स्पेस ब्लैंक, ओके, बट titanium was been discovered and he kept that positions next to the blank space, right? ये दो चीजें हमेशा जरा याद रखिएगा, इसको मैं अभी उठाऊंगा क्यों, और क्यों क्या हुआ कि उन्होंने इसको ब्लैंक क्यों रखा, बिकॉज देखिए, चलिए खैर आगे आते हैं। अच्छा ये था, अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे जो सबसे पहला चार्ट आया बहुत ही अच्छा था, अब देखिए FeCONi, RuRHPD, OSIRPT, ये तीनों का अगर आप देखेंगे तो ये आज की भी पीरियोडिक टेबल में, ये क्यों, अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से यहां से शुरू करिए, स्कैंडिनेवियम से लेके निकिल, आज भी ऐसे ही फैशन में आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाती है, सही है ना? स्कैंडिनेवियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCONi, CuZni, Cu बाद में आया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, एंड देन यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबिडिनियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, लैंथेनम, हाफनियम, टैक्टेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम. So that time he has classified them in a beautiful manner. Two things which used to be remembered, पहला क्या था कि inert gases discovered नहीं थी, और दूसरा क्या था, फॉर अ वाइल आप ये कंसीडर करके चलिए कि स्कैंडिनेवियम की जो पोजीशंस थी वो उस समय ब्लैंक थी, राइट? और क्योंकि स्कैंडिनेवियम डिस्कवर हुआ नहीं था, बट क्या ऑब्जर्वेशंस था वो आपको अभी मैंने आपको बताया ही था, 32 एटॉमिक नंबर के केस में आपको बताया था। जर्मेनियम देखिए ब्लू कलर करके रखा है मैंने यहाँ पे, जर्मेनियम भी देखिए डिस्कवर नहीं था, एंड स्टिल ही हैज गिवन अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशंस कि जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जर्मेनियम का डेंसिटी कितनी होगी, एटॉमिक मास कितना होगा, एवरीथिंग वाज बीन गिवन बाय मेंडलीफ एट द टाइम, स्टिल इट वाज नॉट बीन डिस्कवर्ड। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, अभी आपको देखिए इस टेबल में मैंने दिखाया कि कैल्शियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो नोन था वो क्या था, टिटेनियम, क्लियर है? कैल्शियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो जो नोन था वो क्या था, टिटेनियम। अब देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, द नेक्स्ट नोन एलिमेंट आफ्टर द कैल्शियम इज टिटेनियम। अब देखिए, अब उन्होंने ये क्या बोला कि टिटेनियम को जरा फिर से देखिएगा, टिटेनियम को किस फैमिली में रखा इन्होंने, कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद टिटेनियम, यहीं पे तो रखा उन्होंने, राइट? बल्कि टिटेनियम जब नेक्स्ट नोन एलिमेंट था, और मेंडलीफ तो एटॉमिक मास पे बात कर रहे थे, राइट? तो मेंडलीफ को कैसे पता चला कि नेक्स्ट एटॉमिक मास ये होगा ना कि ये, मेरा पॉइंट ये है कि आप देखिए 40 के बाद एटॉमिक मास 48 डिस्कवर था। हाउ कम मेंडलीफ केम अक्रॉस that there will be a one element which will have the atomic mass in between of calcium and titanium, जबकि वो डिस्कवर नहीं था, और एटॉमिक मास कोई फंक्शनरी प्लेटफॉर्म पे नहीं चलता कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, ऐसा नहीं चलता। बट स्टिल द another property which he has picked up is, remember, chemical property, और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे उन्होंने देखिए क्या बोला कि बोरान और एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी टिटेनियम से मैच नहीं करती। रिमेंबर, सिंस द reactivity pattern of the titanium is not getting matched with the boron and aluminum, that's why he has kept the space blank below these elements, and he shifted the titanium beneath the carbon and silicon, because silicon reactivity towards the oxygen and titanium is matching. So what he thought, that there will be a one element which has not been discovered yet, will be placed in this position, and this observation he has come across on the basis of chemical property, क्योंकि यहाँ पे देखिए केमिकल प्रॉपर्टी बोरान और एल्युमिनियम की किससे मैच नहीं कर रही थी, टिटेनियम से, इसीलिए उन्होंने क्या किया, टिटेनियम को उस फैमिली में नहीं रखा, और टिटेनियम की प्रॉपर्टी जिससे मैच कर रही थी उस प्रॉपर्टी में रखा। तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो गया, और उन्होंने बोला फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी इस फैमिली से मैच होगी, उसे यहाँ पर रखेंगे, और देखिए लकली हुआ भी ऐसा। ये यहाँ पे लिखा है, similarity in the way that selenium forms the oxide compared to how titanium used to be form oxide suggested that titanium and silicon should be arranged in the same vertical column, right? And Mendeleev created a gap in the table. That is a beautiful thing. मैंने heading भी दिया, the boldness of the gap. Just imagine that something which is not going to be matched on the basis of the chemical property, he told that you should keep a space blank. And that is a boldness of gap. चलिए next, filling in the gap. The next story is filling in the gap. देखिए
गैप के बारे में ना there was a no proof, it was arbitrary predictions from Mendeleev that ऐसा हो सकता है, remember, and that हो सकता है has turned up as है, that matters a lot. Can be has been turned to is, that matters a lot. अब देखिए, gap is a predictions, of course it is predictions, but Mendeleev hypothesis was that chemical property of the element recur in a periodic fashions, so he emphasis more on the chemical property. अभी लेटर ऑन मैं आपको ये बोलूंगा कि मेंडलीफ ने ना कोई रूल माना भी नहीं था, वो कहीं पर तो फिजिकल प्रॉपर्टी को वेटेज देते थे और कहीं को केमिकल प्रॉपर्टी. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मे बी हिज इंट्यूशन, बट समवेयर he was managing the show, but he has managed the show with a wonderful way, right? That's why he's Mendeleev. Now see, hypothesis was the chemical property. Now the chemical property were a function of atomic mass. देखिए ये दो चीजें समझिएगा. इनका कहना था कि एटॉमिक मास को मैं एम के उसमें डिफाइन कर रहा हूं. एम इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? केमिकल प्रॉपर्टी पे. मैं लिख रहा हूं उसे सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, राइट? तो उनका ये कहना था अगर केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब उसका एटॉमिक मास भी इस फंक्शंस में नहीं आएगा. एंड देन द मिसिंग एलिमेंट शुड हैव द फॉलोइंग: केमिकली सिमिलर टू बोरान एंड एल्युमिनियम, एंड एटॉमिक मास शुड बी इन बिटवीन ऑफ द कैल्शियम एंड टिटेनियम. And he later on in 1878, I guess, 1879, right? Scandinavium was discovered and his atomic mass 45. देखिए दो तीन बार इन्होंने प्रूव किया. एक जर्मेनियम का मैंने अभी आपको ऑर्डर दिया था 32, it was not been discovered that time, and second is the Scandinavium, right? Next देखिए, make the rules and break the rules. that is another beautiful thing. I will correlate this statement with his personal front also in the I must say in the last of my lecture, but for a while आप सुनिए क्या हुआ. दो चीजें मैं प्रूव कर चुका हूं. एक, जर्मेनियम was not discovered, but he proposed some properties, and that properties was exactly matchable with the framed germanium. And later on he also have given some spaces, that is called gap, and the gap was filled by the element which is having the same property. और उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया स्कैंडिनेवियम, राइट? अब देखिए, अब उसके बाद कहां पे प्रॉब्लम आ रही थी और उसको कैसे उन्होंने सॉर्ट इट आउट किया. एज आई टोल्ड, first he was very much focusing on the chemical property, and he told that chemical property is a periodic function of the atomic mass. But now see what he is telling. As I told, he used to make a rule and then break the rule. Now see, अब he has first to break from the rigid adherence to the hypothesis that chemical properties of the chemical elements are the periodic function of their atomic mass. Just now याद रखिएगा, इससे पहले वाली स्लाइड में क्या बोला था कि chemical properties are the periodic function of their atomic mass. Or later on, when he has faced some criticism, then he has opposed this what you called monotonous hypothesis that chemical property is the periodic function of their atomic mass. And he told iodine, I have mentioned here iodine as a case in a point. Now see, iodine has an atomic mass 127, and tellurium has atomic mass 128. Tellurium used to belong to the family of oxygen, याद होगा आपको, और iodine used to belongs to halogen. ऑक्सीजन की पोजीशन कहाँ है? पहले है, बराबर है ना? ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है? पहले आती है, एंड देन आप हेलोजन को रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, राइट? तो उस हिसाब से, बट याद रखिएगा एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में उन्होंने अरेंजमेंट किया था. तो होना यह चाहिए कि आयोडीन तो पहले आना चाहिए और टेलुरियम बाद में आना चाहिए. डिड यू गेट माय पॉइंट? सिंपल थिंग इज दैट द एटॉमिक मास पे इतना फोकस किया जा रहा था. मेंडलीफ ने कहा कि एटॉमिक मास इज एवरीथिंग, लिटरली. तो एटॉमिक मास आयोडीन का आ रहा है 127 और टेलुरियम का आ रहा है 128. तो as per the Mendeleev suggestions, iodine should be kept ahead with respect to tellurium. But you know that tellurium used to belong to the family of oxygen and iodine used to belong to the family of halogen. यानी just उल्टा है. पहले कौन सा आ रहा है? टेलुरियम, और उसके बाद कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? आयोडीन, राइट? तो अब यहां पर क्या हुआ? वो अभी तक ये कह के आ रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टी इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास. अब वो क्या बोल रहे हैं? नो, इट इज नॉट ट्रू.
and now he has violated the rule and he told no, we need to stick on the chemical property only, and if the chemical property is going to be matched, then we need to keep that element in that particular group, forget about atomic mass. But of course अभी क्वेश्चन ये आ जाता है, फिर हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में जो रूल पढ़ते हैं वो ये क्यों पढ़ते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ atomic mass. वो इसलिए पढ़ते हैं कि out of 63, if you will see that remaining 59 element are following the same trend, तो हम स्टेटमेंट जब देंगे तो 59 को फोकस करेंगे rather than 4 element को. और याद रखिएगा उन्होंने एक चीज इसीलिए स्मार्टली फिजिकल प्रॉपर्टी को इनपुट दिया था अपने लॉजिक में, केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी को भी इनपुट दिया था, सो दैट ही कैन स्किप एंड ही कैन फेस द डिस्प्यूट, यू कैन से. नाउ सी, अब ये चीज मैंने आपको समझा दिया है कि आयोडीन को होना क्या चाहिए पहले एटॉमिक मास के हिसाब से, बट है क्या बाद में. क्यों कहा था ये याद रखिएगा. उनका ये कहना था कि नहीं नहीं, इट इज नॉट ट्रू दैट एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी. इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. We need to stick on the chemical property. If the element used to belong the same chemical property, we need to club it them in the same group where the property is going to be matched, rather than we should focus on the atomic mass. Okay, so this is the rule where he has been violated. Now, अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखिए क्या आया. याद ये रखिएगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल was not perfect. Of course, this is not the first time when he was looking for the criticism. Iodine and tellurium was a major, you can say, setback for his logic, but later on he has faced it. And the second thing is that his observation was purely based on the atomic mass. But if you will see, the atomic mass is not following a trend. Trend मतलब जैसे atomic number की मैं बात करूं, so you know that atomic number 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that is a fixed turn which is going to become. But if we will talk about the atomic mass, ऐसा नहीं होता कि एक एटॉमिक, जैसा अभी मैंने आपको बोला कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना निकला 40, लेट अस टेक राउंड फिगर. स्कैंडिनेवियम का कितना निकला 45, और उसके बाद टिटेनियम का कितना निकला 48. नाउ इफ यू विल सी द डिफरेंस फ्रॉम कैल्शियम टू स्कैंडिनेवियम, द डिफरेंस इज 5. हाउएवर व्हेन we are moving from scandinavium to titanium, what is the difference between atomic mass? That is 3. Are you agreeing? So you cannot say that atomic mass is following the regular pattern. अब इससे problem क्या है? Now the problem is that it's a very difficult to propose that how many more elements are going to occupy in the periodic table, because you never know that which element is going to occupy which positions. Atomic number की beauty समझिएगा कि you know कि 88 के बाद क्या आएगा 89 आएगा, 89 के बाद क्या आएगा 90 आएगा, 90 के बाद क्या आएगा 91 आएगा. आपको ये पता है बराबर. बट एटॉमिक मास के केस में ये वैलिड पॉइंट नहीं है. यू नेवर नो दैट, कभी 45 आ जाता है, कभी 54 आ जाता है. सो यू आर नॉट बीन एबल टू प्रपोज द पॉसिबल एलिमेंट व्हिच कैन बी फर्दर डिस्कवर्ड. ये इसका मेजर फैक्टर. आयोडीन से आपको पता ही चल गया था. बट जो इनकी मेन प्रॉब्लम आई थी वो आपको पता ही है, आयोडीन और टेल्यूरियम की. चलिए अब यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई है, लिमिटेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to press like and share button. Do subscribe the channel for many more interesting videos.